کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کی سواری کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، اور وہ موجودہ زمانے میں اتنا کلومیٹر ہوگا؟ کیا وہ واقعی سمندر کو نالی کی طرح پار کر جائے گا اور سورج کو اپنی مرضی سے روک دے گا؟ کیا وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کو لائے گا؟ لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اور اسی طرح وہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں داخل ہو سکے گا؟ اگر اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم ایک کافی گہرے موضوع پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی، موضوع ہے دجال، اور خاص طور پہ کچھ روایات ہیں جو اس کی سواری، رفتار اور اس کی طاقتوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ہمارے پاس دجال کا ظہور، سواری اور اس کی رفتار کے عنوان سے کچھ مواد ہے۔ جی ہاں، اور یہ مواد بظاہر حدیثوں پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان تفصیلات کو سمجھا جائے کہ یہ روایات کیا تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، اور ان کے ممکنہ معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف لفظی بیان نہیں، بلکہ ایک بڑی آزمائش جسے فتنہ کہتے ہیں، اس کی نوعیت سمجھنے کی کوشش ہے۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سواری کا ذکر ہے، جسے گدھا کہا گیا ہے۔ جی، لیکن یہ کوئی عام گدھا نہیں لگتا۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ 40 گز، یہ تو کافی حیران کن ہے۔ یقیناً یہ پیمائشی غیر معمولی ہے۔ شاید یہ اس کے آپ کہیں اثر و رسوخ کی وسعت کی علامت ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات اس کی رفتار ہے۔ رفتار وہ کیسی؟ روایت میں ہے کہ اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ ایک قدم 3 دن کا سفر، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا کسی نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتنی رفتار بنتی ہے؟ جی، کچھ لوگوں نے حساب لگایا ہے۔ اگر پرانے زمانے کے حساب سے دیکھیں اونٹ کا سفر، تو 3 دن میں تقریباً 250 پونے 300 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اچھا، تو اگر 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے ہو تو یہ رفتار تقریباً 80-90 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتی ہے۔ فی سیکنڈ؟ جی، یعنی گھنٹے میں یہ قریب 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی سے بھی بہت آگے۔ بالکل، یہ رفتار شاید صرف آپ کہیں مادی رفتار نہ ہو۔ اکثر علماء اسے فتنے کے یعنی گمراہی کے تیزی سے پھیلنے کی علامت سمجھتے ہیں۔ اچھا، جیسے آج کل معلومات یا غلط معلومات سیکنڈوں میں پھیل جاتی ہیں۔ جی، کچھ ویسا ہی، مگر کہیں زیادہ منظم اور طاقتور انداز میں۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ اور کیا یہ صرف زمین پر ہی چلے گا؟ نہیں، روایت میں آگے ہے کہ وہ سمندر میں بھی ایسے داخل ہو جائے گا جیسے کوئی چھوٹی سی ندی پار کر رہا ہو۔ سمندر بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا؟ جی، لگتا تو یہی ہے کہ زمین اور سمندر دونوں پر اسے غیر معمولی قدرت حاصل ہوگی۔ تو اتنی طاقت اور رفتار کے ساتھ وہ آ کر کرے گا کیا؟ اس کے دعوے کیا ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑا دعویٰ تو یہ ہوگا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ صرف کہے گا نہیں، بلکہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کچھ حیران کن کام بھی کرے گا۔ مثلاً کس طرح کے کام؟ ایک مثال ہے کہ وہ کہے گا سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ لوگ شک کریں گے تو پوچھے گا روک دوں اسے؟ اچھا، لوگ کہیں گے ہاں، تو بظاہر سورج رک جائے گا۔ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ لگے گا مہینہ یا ہفتہ گزر گیا۔ سورج رک جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ حقیقت میں ہوگا یا؟ دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق تو کائنات کا نظام صرف اللہ چلاتا ہے۔ یہ غالباً اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ڈھیل ہوگی، ایک آزمائش۔ ہو سکتا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہو یا کوئی محدود پیمانے پر غیر معمولی واقعہ ہو۔ پھر وہ کہے گا اب چلا دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو سورج چل پڑے گا اور دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے گھنٹہ بھر کا ہو۔ یہ تو ایمان کے لیے بہت سخت امتحان ہوگا۔ لوگ تو شاید یقین کر ہی لیں گے۔ بالکل، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ذاتی سطح پر، جذباتی طور پر لوگوں کو متاثر کرے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے روایت میں ہے کہ ایک عورت آئے گی، کہے گی میرا بیٹا اور شوہر مر گئے ہیں، انہیں زندہ کرو۔ اور کیا وہ کر دے گا؟ روایت کے مطابق دجال کے حکم پر شیطان ان کی شکل بنا کر سامنے آ جائیں گے۔ شیطان؟ یعنی وہ اصل میں زندہ نہیں ہوں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ شیطانوں کا روپ ہوگا، ایک فریب۔ اچھا، تو یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ جی بالکل۔ ایک اور مثال ہے کہ دیہاتی لوگ آئیں گے، وہ اپنے جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمارے مرے ہوئے اونٹ،
बकरियां जिंदा कर दो। दज्जाल फिर शैतान को हुक्म देगा, वो उन जानवरों की शक्ल में वैसे ही सेहतमंद सामने आ जाएंगे। और लोग? वो देहाती ये देख के कहेंगे, अगर ये हमारा रब ना होता तो ऐसा ना कर पाता। बस वो उसके मानने वाले बन जाएंगे। रिवायत कहती है लोगों के घर शयातीन से भर जाएंगे। यानी हकीकत और फरेब में फर्क करना नामुमकिन सा हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो खाने पीने की चीजों से भी लुभाएगा। अच्छा, वो कैसे? रिवायत में है कि उसके साथ नेमतों के पहाड़ होंगे। एक तरफ गरम गोश्त और शोरबे का पहाड़ जो ठंडा नहीं होगा, बहती हुई नहर होगी। एक तरफ हरियाली, बागात, सब्जियों का पहाड़ होगा, उसे वो अपनी जन्नत कहेगा। और दूसरी तरफ आग और धुएं का पहाड़, जिसे वो अपनी जहन्नुम कहेगा। वो कहेगा, ये मेरा खाना, ये पीना, ये जन्नत, ये जहन्नुम। मेरा इनकार करोगे तो जहन्नुम में, मानोगे तो जन्नत में। ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, खास तौर पर गरीब और भूखे लोगों के लिए। यकीनन आजमाइश सिर्फ अकीदे की नहीं, सब्र और जरूरत की भी होगी। लेकिन उन्हीं हालात में अल्लाह की मदद भी होगी। वो कैसे? क्या कोई इस धोखे से खबरदार भी करेगा? जी, रिवायात के मुताबिक इसी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आ चुके होंगे। अच्छा। वो लोगों को बताएंगे कि ये छोटा मसीह दज्जाल है, झूठा है, इससे बचो। वो वाजे करेंगे कि असल मसीह वो खुद हैं और अल्लाह उन्हें ऐसी हिफाजत देगा कि दज्जाल उन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हक की आवाज भी मौजूद होगी। जी बिल्कुल। जब दज्जाल कहेगा मैं रब हूँ, तो लोग यानी ईमान वाले कहेंगे तो झूठा है। हजरत ईसा भी कहेंगे कि लोगों ने सच कहा। अच्छा, ये बताएं कि मक्का और मदीना का क्या होगा? क्या दज्जाल वहां भी जाएगा? इन शहरों की खास हिफाजत का जिक्र है। रिवायत में है कि हजरत ईसा पहले मक्का जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होगी। वो पूछेंगे, आप कौन? जवाब मिलेगा, मैं मिकाईल हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है कि दज्जाल को हरम से दूर रखूं। यानी फरिश्ते हिफाजत करेंगे? रिवायत से तो यही लगता है। फिर हजरत ईसा मदीना जाएंगे। वहां भी एक बुजुर्ग हस्ती से मुलाकात होगी। वो बताएंगे, मैं जिब्राइल हूँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की हिफाजत के लिए भेजा गया है। तो दज्जाल कोशिश करेगा अंदर जाने की? जी, कोशिश करेगा। लेकिन जब मक्का के करीब आकर हजरत मिकाईल को देखेगा तो डरकर भाग जाएगा, हरम में दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन जाते हुए एक जोर की चीख मारेगा। चीख? उसका क्या मतलब? इस चीख को सुनकर मक्का में जितने मुनाफिक मर्द और औरतें होंगे, यानी जो दिल से ईमान नहीं लाए थे, वो सब शहर छोड़कर दज्जाल के पास भाग जाएंगे। मक्का पाक हो जाएगा। और मदीना में भी ऐसा ही होगा? जी, वहां भी हजरत जिब्राइल को देखकर भागेगा और चीख मारेगा। मदीना के सारे मुनाफिक भी निकलकर उससे जा मिलेंगे। मदीना भी पाक हो जाएगा। गोया ये एक तरह की सफाई होगी। इन मुश्किल हालात में क्या ईमान पर कायम रहने वालों की कोई खास मिसाल मिलती है? एक बहुत आप कहें मुतासिर कुन वाकया है एक मोमिन शख्स का। शायद वो कासिद होगा या कोई रहनुमा। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? तफसीलात कुछ यूं हैं कि वो शायद कुस्तंतुनिया फतह करने वाले लश्कर में से होगा। दज्जाल की खबर लेकर निकला होगा, लेकिन वापसी पर दज्जाल उसे पकड़ लेगा। दज्जाल लोगों को दिखाने के लिए कहेगा, देखो ये समझता था मैं इसे पकड़ नहीं सकता। फिर हुक्म देगा कि इसे आरों से चीर दो। आरों से? सर से पांव तक? जी, रिवायत में यही है। इसे 2 टुकड़े कर दिया जाएगा। अन्ना लिल्लाह, ये तो इंतहाई खौफनाक है। मकसद क्या होगा इसका? शायद खौफ फैलाना। लेकिन फिर वो अपना अगला फरेब चलाएगा। लोगों से पूछेगा, अगर मैं इसे अभी जिंदा कर दूं तो मान लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? और लोग क्या कहेंगे? लोग जो पहले ही मरूब होंगे कहेंगे, यकीन तो हमें पहले ही है, बस इत्मीनान बढ़ जाएगा। तो क्या वो उसे जिंदा कर देगा? रिवायत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वो शख्स जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अहम है कि अल्लाह ये कुदरत दज्जाल को सिर्फ उसी एक शख्स पर देगा, किसी और पर नहीं। अच्छा, ये भी आजमाइश का हिस्सा है? जी। फिर दज्जाल उस जिंदा होने वाले से पूछेगा, क्यों? मैंने मार कर जिंदा किया ना, मैं ही तेरा रब हूँ। इस वक्त उस मोमिन का जवाब क्या होगा? यही तो असल बात है।
वो शख्स जिंदा होने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत ईमान के साथ कहेगा, अब मुझे और पक्का यकीन हो गया कि तू वही काना दज्जाल है जिसकी खबर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। कमाल है, वो ये कैसे कहेगा? वो वजाहत करेगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि तू मुझे कत्ल करेगा, फिर अल्लाह मुझे जिंदा करेगा, और ये भी बताया था कि इसके बाद तू मुझ पर या किसी और पर ये कुदरत नहीं पाएगा। यानी ये वाकया खुद उसके ईमान को और पुख्ता कर देगा। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होते देखकर उसका यकीन बढ़ जाएगा। दज्जाल का क्या रद्द अमल होगा उस पर? वो गुस्से में आ जाएगा, दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। रिवायत में है कि उस शख्स की जिल्द तांबे जैसी सख्त हो जाएगी, कोई हथियार असर नहीं करेगा। अच्छा। तो दज्जाल हुक्म देगा, इसे मेरी जहन्नुम में डाल दो, यानी वो जो आग का पहाड़ बना रखा होगा। तो उसे आग में फेंक दिया जाएगा? जी, लेकिन यहाँ अल्लाह की कुदरत फिर जाहिर होगी। वो आग उस मोमिन के लिए ठंडी और बाग बन जाएगी, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। जी, कुछ वैसी ही मिसाल। लेकिन देखने वालों को क्या नजर आएगा? उन्हें क्या लगेगा? उन्हें दूर से यही लगेगा कि वो आग में जल रहा है। उससे उनका खौफ और शक बढ़ेगा कि दज्जाल जिसे चाहे जला सकता है। ये भी फितने का हिस्सा होगा। हकीकत कुछ और, नजर कुछ और आएगा। सुभान अल्लाह। ये वाकया तो ईमान, इल्म और इस्तिकामत का जबरदस्त सबक है। इसके बाद दज्जाल कहाँ जाएगा? इसके बाद वो तेजी से बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की तरफ जाएगा। जब वो अफीक नामी घाटी पर चढ़ेगा तो नीचे मौजूद मुसलमानों पर उसका साया पड़ेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि वो आ गया है। अफीक? ये कौन सी जगह है? जी, कुछ तफसीलात मिलती हैं। ये गालिबन दरियाए उर्दन के करीब बहीराए तिब्रिया के जुनूब में कोई पहाड़ी रास्ता या दर्रा है। तारीखी तौर पर अहम गुजरगाह रही है। अच्छा, तो मुसलमानों का रद्द अमल क्या होगा? वो फौरन जंग की तैयारी करेंगे। रिवायत कहती है अपनी कमानें तैयार करेंगे, यानी दिफा के लिए तैयार हो जाएंगे। वो वक्त कैसा होगा मुसलमानों पर? बहुत सख्त। रिवायत में है कि भूख प्यास से इतनी कमजोरी होगी कि सबसे ताकतवर वो होगा जो थोड़ा आराम करने बैठ जाए, मतलब हिम्मत जवाब दे रही होगी। या अल्लाह, इतनी मुश्किल में कोई मदद? जी बिल्कुल। इसी हालत में उन्हें आवाज आएगी, लोगो घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद आ पहुंची। और ये मदद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में होगी। यानी आयन मायूसी के वक्त उम्मीद आएगी। अच्छा, दज्जाल की सवारी या ताकत के बारे में कुछ और बातें भी हैं? जी, चंद एक और रिवायात है। जैसे एक में है कि उसके गधे के कान इतने बड़े होंगे कि उनके साये में 70,000 लोग आ जाएंगे। 70,000? ये भी शायद अलामती हो, उसके लश्कर की कसरत की तरफ इशारा। जी, हो सकता है। एक और रिवायत जो हजरत काब अल अहबार से मंसूब है, वो बताती है कि जब दज्जाल उर्दन आएगा तो तूर, साबूर और जूदी पहाड़ों को बुलाएगा और वो बैलों की तरह आपस में टकराएंगे। पहाड़ आपस में टकराएंगे? जी, ये भी उसकी जाहिरी और आर्जी ताकत का मुजाहरा होगा। और आखिरी जंग कहाँ होगी, इस बारे में कुछ है? एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुशरिकीन से लड़ेंगे, यहाँ तक कि बच जाने वाले दरियाए उर्दन पर दज्जाल से लड़ेंगे। मुसलमान मशरिकी किनारे पर होंगे, दज्जाल मगरिबी किनारे पर। तो आज की गुफ्तगू को समेटें तो हमने देखा कि रिवायात दज्जाल की एक नाकाबिल यकीन तस्वीर पेश करती हैं, उसकी सवारी, रफ्तार, ताकतें। जी, और उसके फरेब के तरीके, मुर्दों को जिंदा करने का दावा, जन्नत जहन्नम दिखाना, सूरज को कंट्रोल करना। बिल्कुल। और साथ ही अल्लाह की तरफ से खास मकामात की हिफाजत, मक्का मदीना का पाक होना। और ईमान के मजबूती की वो मिसाल इस कासिद की जिसे मारा गया, जिंदा किया गया, पर वो डटा रहा। जी हाँ। और फिर आखिरी मार्का बैतुल मुक़द्दस के करीब और हजरत ईसा की आमद। ये सब तफसीलात चाहे हकीकी हों या अलामती, एक बहुत बड़े इम्तिहान की तरफ इशारा करती हैं। सच और झूठ, हकीकत और फरेब में फर्क करने का इम्तिहान। सही। ये ईमान, तवक्कुल, इल्म और साबित कदमी का इम्तिहान होगा। वाकई। आखिर में एक बात सोचने की है। जी। इन रिवायात में जो फरेब के तरीके बताए गए हैं, शयातीन का रूप बदलना, हकीकत को छुपाना,
आज हम भी तो मालूमात के एक ऐसे दौर में हैं जहां सच, झूठ, असली नकली में फर्क करना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत अहम नुक्ता है। तो ये रिवायात हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने ज़माने में, चाहे वो दज्जाल की आमद से पहले का ही क्यों ना हो, फरेब और गुमराही की जो शक्लें हैं उन्हें पहचानने और उनसे बचने के लिए कितने तैयार हैं। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको गौर करना चाहिए।